So you guys can find out now the income. Because this is most important thing basically. ये समझ में आ गया सब्सक्रिप्शन, तो एक्सपेंडिचर भी जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है। This is the question. As per receipt and payment account for the year ended 31st March 2015, for the year ended, so receipt and payment for the year ended 31st March 15, the subscription received were 2,50,000. You have received 2,50,000. Additional information given as subscription outstanding on 1st April 14 means at the beginning, receivable at the beginning, subscription outstanding on 31st March 15, receivable at the end. जब भी लिखा जाता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, subscription outstanding as on means it is a total, it is total. Subscription received as on beginning, subscription received advance as on end. Ascertain the amount of the income from the subscription for the year 2014-15 and show how relevant items of the subscription appear in the opening and closing balance sheet. करो try, give it a try. चलो करो and then I will solve it. Make it fast. Okay. जल्दी करो. Okay, some are saying 2,30,000, some are saying 2,60,000. ओके, इधर भी कोई लोगों ने टाइप किया है क्या? ठीक है. 1,70,000, 2,30,000, 2,75,000. देखो, now try to understand. It is total subscription received during the year is total subscription received during the year. ध्यान देना, concept remains same. कंसेप्ट रिमेन सेम, कंसेप्ट चेंज कभी नहीं होती है, हमेशा याद रखना ये चीज. ध्यान देना, ठीक है. टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, received during the year, 2,50,000 plus
outstanding at the end, receivable at the end, add in income, add in asset. Outstanding, total outstanding at the end, total outstanding at the end, at the end लिखा होगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ दैट इज 35,000. 35,000 इनकम में ऐड होके असेट में ऐड होगा, इनकम में ऐड होके असेट में ऐड होगा, लेस. अगर टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड हुआ है तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस होगा, रिवर्स. टोटल आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, total outstanding at the beginning is 50,000. So what we assume, try to understand, they are not given इस 50 में से previous year का कितना है, next year का कितना है और current year का कितना है, लिखा नहीं उन्होंने. They are not specifically mentioned. So we assume whatever was receivable at the beginning, whatever was receivable at the beginning, which is 50,000, हम मान के चलते कि we have received that. Whatever is receivable at the beginning is received. इसलिए मैंने 50,000 माइनस किया. क्या माना मैंने? Whatever was receivable at the beginning, 50,000 is totally entirely received. यही तो हम assume कर सकते हैं. दूसरा क्या assumption है हमारे पास? Then outstanding at the end माइनस होता है, less. Sorry, pre-received at the end माइनस होता है. Total pre-received at end, pre-received income minus from income, add in liability. Pre-received at the end, received advance at the end is 30,000. And अगर pre-received at the end minus होने वाला तो pre-received at the beginning जो opening liability में होगा वो income में add हो जाएगा. Add total pre-received at the beginning. कितना है टोटल pre-received at the beginning? 25,000. What is my assumption? They have not given me the bifurcation of 2,50,000. How much is of the previous year, how much is of the current year and next year. तो हम क्या मानते हैं, जो भी ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था 50,000 दैट इज रिसीव्ड, एंड क्लोजिंग में जो रिसीव्ड एडवांस है, क्लोजिंग में रिसीव्ड एडवांस कितना है 30, दैट इज रिसीव्ड इन द करंट ईयर. इसलिए हम क्या करते हैं, 50,000 को माइनस करते हैं, 30,000 को माइनस करते हैं. 50,000 को माइनस किया 30, सो अपने आप करंट ईयर का बचेगा. सो 2,50,000 से 50 गया, 2 लाख बचा, फिर 30 गया 1,70,000. सो करंट ईयर का 1,70,000 है. अपने आप क्या हो जाता है जब हम ग्रॉस बेसिस पे करते ना, ग्रॉस बेसिस पे मतलब क्या, जितना आउटस्टैंडिंग था बिगिनिंग में वो पूरा का पूरा रिसीव्ड होगा ये मानते हैं, इसलिए वो क्लोजिंग में 0 बचेगा. हम क्या मानते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम मानते हैं ओपनिंग में 50,000 आउटस्टैंडिंग था विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो इसमें से क्लोजिंग में कुछ नहीं बाकी है. एंड एट द एंड ऑफ द ईयर जो आउटस्टैंडिंग है 35,000, एट द एंड ऑफ द ईयर जो आउटस्टैंडिंग है 35,000, वो पूरा का पूरा करंट ईयर का है. सो दिस इज आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर. ओपनिंग का पूरा क्लियर हुआ है, सो जो क्लोजिंग एज ऑन क्लोजिंग है ना वो फॉर द ईयर ही है. सो ऐसे मान के हम एज्यूम करते हैं. एंड इसलिए मैंने माना कि जो आउटस्टैंडिंग था पूरा का पूरा रिसीव्ड हो गया. सो 2,50,000 इंक्लूड्स 50,000 ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड 30,000 ऑफ द नेक्स्ट ईयर. क्लोजिंग वाला प्रीवियस ईयर का कितना, ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग, नेक्स्ट ईयर का कितना, नेक्स्ट ईयर मतलब क्लोजिंग, क्लोजिंग में एडवांस कितना है वो. सो अपने आप कितना बचेगा 1,70,000. सो 1,70,000 इनकम में बचेगा, प्लस प्लस ऑलरेडी रिसीव्ड. ऑलरेडी रिसीव्ड क्या रहता है, रिसीव्ड एडवांस एट द बिगिनिंग. रिसीव्ड एडवांस एट द बिगिनिंग कितना है 25, ऑलरेडी रिसीव्ड 25,000 ऐड हो जाएगा, प्लस
आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, फॉर द ईयर कितना रहेगा, जितना क्लोजिंग में है उतना ही रह जाएगा ऐसे केसेस में, विच इज आउटस्टैंडिंग एट द एंड इज 35,000. सो आपने 25,000 ऐड किया होगा एंड 35,000 ऐड किया होगा. योर इनकम इज 50-60 ऐड करने के बाद 2,30,000. योर इनकम इज 2,30,000. इट इज 2,30,000. क्लियर है? सो जो ग्रॉस बेसिस पे करते हो ना, ग्रॉस बेसिस पे, उसमें हम क्या मानते हैं, वॉट एवर इज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, वॉट एवर इज आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग इज रिसीव्ड. एंड इसलिए जो क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग है ना, वो इस ईयर का आउटस्टैंडिंग है. जो भी ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था पूरा रिसीव्ड हो गया, मतलब वो पूरा क्लियर होगा. इसलिए जो भी क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग है ना, वो इस ईयर का है. सो क्लोजिंग वाला माइनस करेंगे, एंड वाला ऐड करेंगे. एंड जो भी क्लोजिंग में रिसीव एडवांस है ना, वो इस ईयर में नेक्स्ट ईयर का मिला है, वो माइनस करेंगे. एंड ओपनिंग में जो रिसीव एडवांस है वो ऐड करते हैं. रिसीव एडवांस का कोई दिक्कत नहीं, वो हमेशा वैसे ही होता है. देन ठीक है. अच्छा, आपके रिसीव साइड पे कितना रहेगा? रिसीव साइड पे, ऑन योर रिसीव साइड इट विल बी 2,50,000. इन रिसीव पेमेंट के रिसीव साइड पे कितना रहेगा? 2,50,000. टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट में दिखेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट में दिखेगा. ये 50,000 रिसेबल एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ये ओपनिंग बैलेंस शीट असेट में दिख रहा होगा. ओपनिंग बैलेंस शीट असेट में दिख रहा होगा, क्लोजिंग में वो जीरो हो गया है. और नया आ चुका है करंट ईयर का 35,000. प्री रिसीव्ड एट द एंड, एंड मतलब क्लोजिंग, बिगिनिंग मतलब ओपनिंग, एट द एंड प्री रिसीव्ड एट द एंड मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी में दिख रहा होगा. प्री रिसीव्ड एट द बिगिनिंग मींस प्रीवियस ईयर. प्री रिसीव्ड एट द बिगिनिंग मतलब प्रीवियस ईयर. ये कहां पे दिख रहा होगा? ओपनिंग लायबिलिटी में दिख रहा होगा. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन सा आइटम कहां पे दिखेगा. देन देन लेट्स फाइंड आउट द इनकम ओवर ईयर. हम एक्रूअल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं. कौन सी एक्रूअल? मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. This is the question. Make it fast. करो. जल्दी करो. Extracts of the receipt and payment account for the year ended 31st March 2015 are given below. Receipt side दिया है उन्होंने, सब्सक्रिप्शन 2015 का कर रहे हो, 13 14 14 15 and 15 16. Total number of members are 230. Annual membership एक बंदे से 125 लेनी है. Subscription outstanding on 1st April 2013 is 2750. What is the income and what will be the outstanding at the end?
करो करो। ओके, अच्छा, आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, टोटल आउटस्टैंडिंग। ओके, तीनों बोल सकते हो। पहले का कितना अभी भी बाकी है, इस ईयर का कितना बाकी है, और टोटल कितना बाकी है। ठीक है, इनकम कितनी है। बिकॉज ये कंसेप्ट समझ में आ गया, मैं इतना क्यों इस पे स्ट्रेस दे रहा हूं, उसके पीछे लॉजिक समझो। बिकॉज दिस कंसेप्ट इज द बेस ऑफ द चैप्टर। ओके, ओके, अब ध्यान देना। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इनकम ढूंढनी ना, रिसीट से इनकम ढूंढनी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, subscription received during the year is 30,320, 30,250, सॉरी, रिसीव्ड इस साल में 30,250 मिला है। इनकम जो मिला है वो नहीं होता है, जो रिसीव्ड है उसमें से जो इस ईयर का है वो इनकम, प्रीवियस ईयर का वो प्रीवियस ईयर की इनकम होगी, आउटस्टैंडिंग दिख रही होगी, उसको निकालो, नहीं तो डबल इनकम हो जाएगी। जो नेक्स्ट ईयर का है वो नेक्स्ट ईयर की इनकम होगी, उसको नेक्स्ट ईयर की इनकम में लेके जाना है, उसको निकालो, लेस, राइट। ड्यूरिंग द ईयर subscription received during the year 1450, during the year 1450, ठीक है। then received for previous year 1314, received for next year 1516, so खाली इस ईयर का रखेंगे, ठीक है। received for previous year is 2500, received for next year is 1000, so अपने आप you will get what is of the year 26,750, add already received in the previous year, already received for current year, that is received for 1415 in previous years। ओपनिंग में कुछ रिसीव एडवांस है क्या, नहीं है, अगर होता तो लिखते वो। so till date you have received for this year 1415 26,250 plus outstanding for current year which is 1415, I don't know, they have not given me, but I can find it out. Therefore income for 1450 is number of members 230 multiplied by annual membership fees 125, वो कितना आता है 28,750। अच्छा, this is your annual membership fees, so for this year you should have received 28,750 but you have received 26,750, तो outstanding कितना है 2,000। this is outstanding for the year, this is not total outstanding, this is outstanding of current year, ठीक है। तो अब मैं यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाऊंगा, ध्यान देना।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाऊंगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या रहेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या रहेगा ध्यान देना, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या रहेगा, जितना रिलेवेंट है उतना निकालो, सब निकालने की जरूरत नहीं। और ये क्यों कर रहा हूं, बिकॉज समझ में आना चाहिए कौन से आइटम्स कहां पे जाएंगे। इनकम साइड पे दिखेगा बाय सब्सक्रिप्शन इनकम विच इज 28,750, ये इनकम में आके बैठेगा, इनकम में आके बैठ गया। आगे ओपनिंग में रहेगा आउटस्टैंडिंग, मिनिमम you have received 2,500 फॉर द प्रीवियस ईयर, आपको 2,500 रुपीज प्रीवियस ईयर का मिला है, इस ईयर में प्रीवियस ईयर के लिए 2,500 मिले, मतलब वहां पे कम से कम 2,500 रिसीवेबल रहेंगे। एंड एज पर क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग इज हाउ मच, 2750। so आउटस्टैंडिंग कितना था, 2750। सो क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग कितना दिखेगा, प्रीवियस ईयर का 2750 था, उसमें से वी रिसीव्ड 2,500 इन द करंट ईयर, सो उतने से वो कम हो जाएगा। सो अभी भी ये बाकी रहेगा 250। ये कौन से ईयर में आएगा, नेक्स्ट ईयर में आएगा। इवन यू विल रिसीव 250 इन द नेक्स्ट ईयर, वो तभी भी हम उसको इनकम में ले लेंगे, बिकॉज वो इनकम है ही नहीं, बिकॉज वो पहले ही इनकम रिसीवेबल बेसिस पे आपने ली है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है, 2,000। सो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया 2250। लायबिलिटी में देखेगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ द नेक्स्ट ईयर, यहां से इनकम से माइनस किया है, लायबिलिटी में ऐड करना होगा 1,000। दिस इज द वे यू विल शो इन द फाइनल अकाउंट्स। लिख लेना फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, लिखो जल्दी, मेक इट फास्ट। Make it fast. सब्सक्रिप्शन समझ में आए तो मैं एक्सपेंसेस पे जा सकता हूं, एक्सपेंसेस एग्जैक्टली इसकी कॉपी पेस्ट है, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। एंड देन वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, एनी कोई भी क्वेश्चन आप बोलो हम वो सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी, ये समझ में आ गया तो। यू कैन पिक अप एनी क्वेश्चन एंड यू कैन सॉल्व इट, मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, आगे now this is the question. From the following extract of recent payment account and the additional information given below, compute the amount of the income from the subscription, income from subscription ढूंढना है हमें, and show how they will appear in the income expenditure account and the balance sheet. Recent payment account for the year ended
31st March 15. Your current year is 14-15. Subscription for 13-14, 14-15, 15-16. Total received is 42,000. Additional information. Subscription outstanding on 31st March 14. प्रीवियस ईयर के एंड में या ये ईयर जब स्टार्ट हुआ है तब 8,500 का आउटस्टैंडिंग था. टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इस ईयर के एंड में टोटल आउटस्टैंडिंग इज 18,500. सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 4,000. यू हैव टू फाइंड आउट द इनकम. टेक 2 minutes एंड सॉल्व इट. कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो. गिव, थोड़ा एफर्ट डालो. ब्रेन पे ना थोड़ा तकलीफ दे दो ब्रेन को, कुछ नहीं होता है. मेक इट फास्ट. मेक इट फास्ट. सिंपल है. ओके, ओके देखते तुम लोगों का बराबर है रॉन्ग है. ठीक है, ध्यान देना. टोटल सब्सक्रिप्शन यू कैन सी लिखो. ओपनिंग में 8,500 रिसीवेबल था, उसमें से यू हैव रिसीव्ड 7,000. 31st March 14 मतलब ईयर कौन सा, 13-14 का कितना रिसीवेबल था, 8,500. कितना रिसीवेबल था, 8,500. आउट ऑफ दैट यू हैव रिसीव्ड 7,000 इन द ईयर. सो अभी भी वो कितना बाकी है, 1,500. 18,500 includes 1,500. 18,500 includes 1,500. This is total. इस तारीख पे टोटल सब्सक्रिप्शन 18,500 है. उसमें से ओपनिंग का प्रीवियस ईयर का अभी भी 1,500 है. तो करंट ईयर का कितना, 16,000 is of the current year. So income is 30,000 plus already received 34,000 plus 16,000. 50,000 is your income. Your income is 50,000. देखता हूं मैं आंसर. बहुत लोगों ने गलत आंसर है. 34 plus 16 50,000 आंसर है. 51 आता है क्या, कैसे? 30 plus 4 34 आ गया. 34 plus अच्छा 17,000 है. सॉरी, ये 17, 16 ये 17 है.
तो 51,000 आंसर आएगा। परफेक्ट, तो लिखो, चलो देखो सोलू राइट, ठीक है। सो लिखो सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर, और आपको समझना है आप किधर गलत जा रहे हो, ठीक है। क्यों खुद होके सॉल्व करना है, तो समझने के लिए कि किधर गलत जा रहे हो और उस पर सोचो क्यों गलत गया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर 14-15, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2014-15 इज, टोटल रिसीव्ड कितना है 42, जो रिसीव्ड है वो इनकम नहीं, उसमें से जो करंट ईयर का है वो इनकम है। 42,000 you have received for 3 years. In the current year you have received money for the 3 different year, something for previous year, something for current year, something for next year। उसमें से जो करंट ईयर है वो इनकम रहेगा, इसलिए 2 years का हटाओ, लेस received for previous year and next year, received for previous year 13-14 and received for next year 15-16। You received 7,000 for the previous year, मतलब if you received 7,000 for the previous year, तो दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, पिछले साल के लिए 7,000 आया है, मतलब ओपनिंग में पिछले साल में कम से कम 7,000 रिसीवेबल रहेगा, असेट में कम से कम 7,000 रहेगा। देयर वाज 8,500, उसमें से 7,000 आए, तो अभी भी 1,500 इज देयर। सो क्लोजिंग का जो टोटल रहेगा ना, टोटल आउटस्टैंडिंग, उसमें वो रहेगा 1,500, ठीक है। आगे रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर जो लाइबिलिटी में जाके बैठेगा वो है 5,000। Therefore, for this year you have received 30,000 in this year। इस ईयर का इस ईयर में कितना मिला 30,000। दिस इज अ पार्ट ऑफ इनकम। एड ऑलरेडी रिसीव्ड फॉर 2014-15 करंट ईयर का इन प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर्स। पहले कुछ मिला था क्या, पहले कुछ मिला मतलब ओपनिंग में कुछ इस साल का मिला था क्या, ओपनिंग में इस साल का मिला था क्या, लास्ट ईयर में इस साल का मिला था क्या, मतलब लास्ट ईयर में वो रिसीव्ड एडवांस रहेगा। ओपनिंग में कुछ रिसीव्ड एडवांस था क्या, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 4,000। सो अभी तक यू हैव रिसीव्ड 34,000 फॉर द करंट ईयर टिल द डेट, आज के तारीख तक यू हैव रिसीव्ड 34,000, उसमें से 4,000 पहले, 30,000 इस ईयर में। इनकम जो है इस ईयर की, इनकम कैन बी रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर, इनकम कैन बी रिसीव्ड इन द करंट ईयर, इनकम कैन बी रिसीव्ड इन द सब्सिक्वेंट ईयर। सो टिल इस ईयर का अभी तक 34 मिला है, प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर बोल रहा हूं करंट ईयर 2014-15। बच्चों को लगता है इस ईयर का आउटस्टैंडिंग, बच्चों को लगता है इस ईयर का आउटस्टैंडिंग राइट 18,500। नो, दिस इज टोटल ऑन दिस डेट, इस तारीख पे टोटल है। सो जब भी मैं टोटल की बात करता हूं आउटस्टैंडिंग, तो इस ईयर का हो सकता है, इसके पहले वाला भी हो सकता है। सो 18,500 इंक्लूड्स 1,500 ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो 17,000 इज फॉर द ईयर। सो यहां पे आएगा आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर 18,500 माइनस ओपनिंग का 1,500, 70। Therefore, your income is 51,000। Your subscription income is 51,000। Now, you can also calculate it on gross basis. Option 2. This is option 1. Now go for the option 2.
ऑप्शन 2, subscription received during the year. During the year, total you received 42,000. Add total outstanding at the end 18,500. टोटल ऐड करो, लेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस होगा, टोटल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, एज्यूमिंग जो भी बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग था वो रिसीव्ड हुआ है, एज्यूमिंग जो भी आउटस्टैंडिंग था 18,500 पूरा का पूरा रिसीव्ड है, सॉरी 8,500 था ना, ओपनिंग में कितना आउटस्टैंडिंग था 8,500, वो पूरा का पूरा रिसीव्ड है ऐसे मानेंगे, राइट, एट द बिगिनिंग, एज्यूमिंग whatever is in receivable at the beginning, outstanding at the beginning, 8,500 is received. So actually आप कितना ऐड कर रहे हो देखो ना, you are adding 10,000. आपने क्या माना कि जो भी ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग था पूरा का पूरा रिसीव्ड हो गया, इसलिए पूरा माइनस किया, एंड जो क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग है वो पूरा का पूरा इस ईयर का है, इसलिए आपने वो ऐड किया. तो यहाँ पे आप चाहिए तो देखो, आपने 7,000 माइनस किया है आउटस्टैंडिंग के लिए एंड 17,000 ऐड किया है. एक्चुअली आपने इन दोनों के लिए 10,000 ही ऐड किया है, दोनों में सेम ही है. 42,000 में यहाँ पे भी आपने 10,000 ऐड किया और यहाँ पे भी 10,000 ऐड किया है. सो आप कैसे सॉल्व करते हो फर्क नहीं पड़ता, आंसर रिमेन्स सेम. आगे नेक्स्ट, ठीक है, देन माइनस received advance at the end, anything received advance at the end minus from income, add in liability, total received in advance at the end. Received advance at the end is कितना है 5,000. एट द एंड वाला नेक्स्ट ईयर का कितना है 5,000, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं देता रिसीव्ड एडवांस का. ऐड एट द एंड वाला माइनस हुआ है, मतलब बिगिनिंग वाला ऐड होगा. टोटल रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग में दोनों तरीके से सिखा रहा हूं. इन बिगिनिंग रिसीव्ड एडवांस एट द बिगिनिंग कितना था 4,000. देखो आपने यहाँ पे रिसीव्ड एडवांस के लिए क्या किया है, एंड का 5,000 माइनस किया, 4,000 ऐड किया, आपने 1,000 डिडक्ट किया. ऊपर देखो 5,000 माइनस है, 5,000 माइनस है, 4,000 ऐड है, तो दोनों मिला के कितना माइनस है 1,000 ही माइनस. आंसर सेम रहेगा. $51,000 इनकम. $51,000 इनकम लिखो टी फॉर्म में, सिंपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर 2 लाइन का. इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट 2 लाइन की, क्लोजिंग बैलेंस शीट 2 लाइन की. इनकम साइड पे आएगा 51,000 बाय सब्सक्रिप्शन इनकम. आउटर कॉलम में कितना आएगा 51,000 बराबर. आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग कितना था लिखा है उन्होंने, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग वाज ओवरऑल 8,500. वो ओपनिंग एसेट में रहेगा, कम से कम 7,000 तो होना ही चाहिए था, बिकॉज अगर इस साल में प्रीवियस ईयर का 7,000 मिला है तो कम से कम 7,000 होना चाहिए.
उसमें से क्लोजिंग में कितना आएगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का 8,000 था, 8,500 था, यू रिसीव्ड 7,000, देयरफॉर अभी भी 1,500 बाकी है, अभी भी 1,500 बाकी है। टोटल आउटस्टैंडिंग इज 18,500, उन्होंने दिया 18,500, तो करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है? 17,000। फॉर द ईयर इज 17,000, टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड इज 18,500। आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमेशा याद रखना, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, अगर इस तारीख पे अगर आउटस्टैंडिंग देख रहे हो तो करंट ईयर भी रहेगा, प्रीवियस ईयर्स भी रहेंगे, इट विल बी क्यूमुलेटिव। दिस इज आउटस्टैंडिंग, टोटल आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर्स का आउटस्टैंडिंग। एंड इस तारीख पे एडवांस देख रहे हो तो नेक्स्ट ईयर सब नेक्स्ट ईयर हो सकते हैं रिसीव एडवांस। आगे कोई भी तारीख पे एडवांस मतलब उसके आगे वाला, कोई भी तारीख पे आउटस्टैंडिंग मतलब उस तारीख तक सब पिछले वाला, ठीक है। देन क्लोजिंग में आ जाएगा, यहां पे दिखेगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग लायबिलिटी में दिखेगा एडवांस सब्सक्रिप्शन विच इज 4,000, ये इनकम में ऐड हुआ है, ओपनिंग लायबिलिटी इनकम में ऐड होगी। तब ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर में हमने उसको लायबिलिटी बोला था, आज हम उसको इनकम बोलेंगे, ठीक है। एंड क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन इस ईयर में नेक्स्ट ईयर का कितना मिला है, इस ईयर में नेक्स्ट ईयर का कितना मिला है 5,000, हम उस 5,000 को बोलेंगे अरे तू नेक्स्ट ईयर की इनकम है इस ईयर की नहीं, तो अब आज तू लायबिलिटी में जा, नेक्स्ट ईयर तुझे लायबिलिटी से इनकम में लेके जाएंगे। लिख लेना प्रेजेंटेशन, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। मेक इट फास्ट। ठीक है, आई विल बी अपलोडिंग, गिव मी 2 to 3 days। लेक्चर्स बहुत सारे, इट टेक्स टाइम, उतनी बैंडविड्थ नहीं है रे, बहुत टाइम लगता है, एक लेक्चर अपलोड करने में 2 घंटे लगते हैं ऑलमोस्ट। आई डोंट नो व्हाई, ओवरऑल उतनी बैंडविड्थ नहीं मिलती। सेफ फाउंडेशन का कल का लेक्चर मैंने अपलोड किया, आई विल शेयर द लिंक, ठीक है, कल का मैंने कर दिया रात को, आई विल बी शेयरिंग द लिंक, ठीक है, मैं अब भी डाल देता हूँ ग्रुप पे। नेक्स्ट आगे नाउ राइट, लिख लेना कंजम्पशन ऑफ द स्टॉक, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट, एक तो सब्सक्रिप्शन था, दूसरा कंजम्पशन ऑफ द स्टॉक, कंजम्पशन ऑफ द स्टॉक लिख लेना। कंजम्पशन ऑफ द स्टॉक, ठीक है, लिख लेना।
क्या होगी ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट यहां पे लिखा है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग एसेट में है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 10,000, दिया होगी रिसीव पेमेंट ऑफ द करंट ईयर, रिसीट एंड पेमेंट, डेबिट इज रिसीट, क्रेडिट इज पेमेंट, पेमेंट में लिखा है बाय परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, you are paid for sports material, ₹1,00,000 एंड एडजस्टमेंट में लिखा है स्पोर्ट्स मटेरियल इन हैंड, इन हैंड ₹20,000, फाइंड आउट स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड, ठीक है। सो इफ यू रिमेंबर ट्रेडिंग अकाउंट, एग्जैक्टली ट्रेडिंग अकाउंट जैसे करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, इफ यू रिमेंबर, ये लिख लेना, ये मत लिखना, खाली ध्यान देना। आप क्या करते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग के डेबिट पे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहां पे रहता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में रहेगा, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में, असेट में 10,000। सो जो भी टैलिड इंफॉर्मेशन होती है एक जगह पे आती है, सो ओपनिंग बैलेंस शीट मस्ट बी टैलिड, इधर आ गया। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे आ गया टू ओपनिंग स्टॉक, ये परचेसेस है, यू हैव पेड फॉर इट, परचेसेस कहां पे आते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट पे, उधर क्रेडिट है, इधर डेबिट आ गए, टू परचेसेस, कितने का आपने परचेस किया, 1,00,000, एंड स्पोर्ट्स मटेरियल इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक है ये, क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक 20 एंड ऐड इन असेट, ट्रेडिंग को क्रेडिट करेंगे और क्लोजिंग असेट में ऐड कर देंगे, समझ में आ रहा है। ये हम किस में कर देते हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट में कर देते हैं। यही हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करना है, बट इसका थोड़ा प्रेजेंटेशन चेंज करेंगे, कैसे ध्यान देना, कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, देखो आई विल से टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या लिखूंगा, टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, थोड़ा कुछ ऐसे हटके, कुछ तो अलग स्टाइलिश नाम देना चाहिए ना, वही चीज करनी है बट कुछ अलग नाम के अंडर करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, पढ़ने वालों को भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि यार हमने कुछ तो अलग किया बोल के, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वही वही नहीं कर रहे, कुछ तो अलग कर रहे, राइट। ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, इज ओपनिंग स्टॉक, डेबिट पे ओपनिंग स्टॉक 10,000 इनर कॉलम में, प्लस परचेसेस, डेबिट पे परचेस होते मैंने ऐड किया 1,00,000, 1,00,000, टोटल गुड्स इन हैंड, स्पोर्ट्स गुड्स और स्पोर्ट मटेरियल इन हैंड इज 1,10,000, टोटल हमारे पास पहले का 10,000 स्पोर्ट्स मटेरियल पड़ा था बिगिनिंग में, लास्ट ईयर का अनसोल्ड था, या लास्ट ईयर का जो कंज्यूम नहीं होता वो था 10,000, इस साल में 1,00,000 परचेस किया इन हैंड,
In hand is 1,10,000. What is in hand? इसको बोलते हैं इन हैंड. और अवेलेबल, इतना अवेलेबल था, अवेलेबल फॉर कंजम्पशन, इतना हम कंज्यूम कर सकते थे. इन हैंड और अवेलेबल फॉर कंजम्पशन इज ओपनिंग प्लस परचेसेस. आप कितना कंज्यूम कर सकते हो? 1,10,000 से तो ज्यादा नहीं कर सकते हो ना. आपके पास पहले का 10,000 है, इस ईयर में परचेस किया 1,00,000, टोटल 1,10,000 से ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते. सो अवेलेबल फॉर कंजम्पशन और इन हैंड फॉर कंजम्पशन, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस इज कॉल्ड एज इन हैंड, स्टॉक इन हैंड और राइट स्टॉक अवेलेबल लेस. एक्चुअली हम क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे क्रेडिट में पॉजिटिव लिखते हैं ना. इफ यू चेंज द साइड, क्रेडिट से अगर डेबिट पे लेके आते हो, क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट होता है, यू आर चेंजिंग द साइड, मतलब वो निगेटिव हो जाएगा. राइट हैंड साइड से अगर कोई इक्वेशन के राइट हैंड साइड से कोई वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हो तो निगेटिव हो जाती है, उल्टा हो जाएगा साइन, लेस. राइट, क्लोजिंग स्टॉक 20. सो मेरे पास 1,10,000 का स्टॉक था, उसमें से 20 अभी भी कंज्यूम्ड नहीं हुआ है, वो वैसे के वैसे हमारे पास है. मतलब हमने कितना कंज्यूम किया? 90. जस्ट प्रेजेंटेशन में थोड़ा चेंज आए, बाकी कुछ नहीं. 10,000 प्लस 1,00,000 माइनस 20, यही तो कंजम्पशन है. 10,000 प्लस 1,00,000 माइनस 20 से कंजम्पशन. सपोज मेरे पास 10 बॉटल थे, मैंने और 90 बॉटल्स परचेस किए, मेरे पास कितने बॉटल्स हो गए? 100. सपोज उसमें से 30 बॉटल्स मैंने कंज्यूम नहीं किए, अभी भी मेरे पास है, तो मैंने कितने कंज्यूम किए? 70. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कंजम्पशन. तो ये ट्रेडिंग अकाउंट जैसे लिख रहे हैं, बट क्लोजिंग स्टॉक को इंस्टेड ऑफ राइटिंग पॉजिटिव ऑन द क्रेडिट साइड एंड देन डेबिटिंग इट टू असेट, असेट में लिखने की जगह अनदर ऑप्शन विद द क्लोजिंग स्टॉक की वो परचेस से माइनस करके लिखा. अनदर ऑप्शन विद द क्लोजिंग स्टॉक इज टू डिडक्ट इट फ्रॉम द परचेसेस. क्रेडिट को पॉजिटिव लिखने की जगह डेबिट पे नेगेटिव लिखेंगे, वी विल डिडक्ट इट फ्रॉम द परचेसेस एंड वी विल ऐड इन द असेट. वही हमने यहां पे किया. अब लिख लेना, दोनों लिख लेना, मतलब आपको समझेगा. दिस इज द वे यू फाइंड आउट द कंजम्पशन ऑफ द स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग एसेट में रहता है, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग एसेट में रहता है. ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग एसेट में रहता है, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग एसेट में रहता है. ठीक है, आगे. मेक इट फास्ट. मेक इट फास्ट.
क्लियर है, सिंपल था. हाउ टू फाइंड आउट कंजम्पशन? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज अ कंजम्पशन. ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग एसेट में रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग एसेट में रहेगा. एज सिंपल एज दैट. परचेसेस पेमेंट साइड पे रहेंगे. किसी को डाउट है? आगे इसका एक क्वेश्चन ही है. लिख लिया. नाउ 11th का नहीं, 12th. Okay, you have to calculate stationery consumed from the above information. This is the question. Illustration है. In the balance sheet, this is the balance sheet 31st March 17. 16-17 की बैलेंस शीट है. 800 रिसीव पेमेंट अकाउंट है ऑफ 17-18, मतलब करंट ईयर 17-18. दिस इज स्टेशनरी परचेस्ड है. एंड यहाँ पे लिखा है अच्छा 1500 is outstanding for stationery bill. Stock of stationery at the end of the year is 1300. Calculate stationery consumed. करो ट्राई. ओके
अच्छा अब ध्यान देना, यू हैव पेड 7,000 एंड उन्होंने बोला 1,500 इज स्टेशनरी बिल आउटस्टैंडिंग. सो ध्यान देना, दिस इज कैश परचेसेस, दिस इज क्रेडिट परचेसेस, दिस इज कैश परचेसेस, दिस इज क्रेडिट परचेसेस. अभी भी पेड करने बाकी है ना. सो ओपनिंग स्टॉक इज 800 प्लस कैश परचेसेस 7,000 plus credit purchases, add in expense, add in liability, credit purchases 1,500. Total purchases are actually 8,500. So this will be 9,300. Available is 9,300. Less closing stock. Less closing stock which is 1,300. Minus from expenditure, add in asset. Prepaid जैसा 8,000. Your consumption is 8,000. देखो कैसे लिखा है. Stock of stationery at the beginning plus purchase during the year plus pay outstanding. So total purchases are 8,500. Total purchases are 8,500. So 800 plus 8,500 is 9,300. Less closing stock is consumption. Is consumption. ठीक है? क्लियर है? सो एक हमने नई एडजस्टमेंट सीख ली विच इज रिलेटेड टू, ठीक है, which is related to right your consumption of the stock. 8:30 हुए, so we can take break. आज कितने बजे फिर इवनिंग में? 3:30. ठीक है, we have to start the lecture at 3:30. ठीक है, so चलो, थैंक यू.